Today I am here with your EVS chapter number 5, My Neighborhood. Your neighborhood means the, the places which is there around us. As you all know, neighbor means what? Yes, the person who stays near our house. And neighborhood means the places which is there around our house. Okay, so let us warm up the lesson. The students of class 2 are talking about the places around their school. Now here some students of class 2, okay, is talking around the places around his school to his teacher and friends. Okay, so first Amjad, my house is near our school. I walk to school every day. What Amjad is saying? He is saying my house is near our school. मेरा घर जो है स्कूल के नज़दीक है, इसीलिए मैं घर से स्कूल वॉकिंग करके आता हूँ. टीचर, सो योर हाउस इज इन द नेबरहुड. दैट मीन्स स्कूल से जो उसका घर पास है, इसलिए उसका घर जो है वो स्कूल के नेबरहुड में है, या फिर स्कूल जो है उसके घर के नेबरहुड में है. ओके, नाउ व्हाट डज अमजद सेज? अमजद, माय फ्रेंड वर्क्स एट द बैंक नियर अवर स्कूल. माय फादर वर्क्स एट द बैंक नियर अवर स्कूल. माय मदर वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस इन अवर नेबरहुड. व्हाट अमजद इज सेइंग कि मेरे फादर जो है वो बैंक में काम करते हैं जो हमारे स्कूल के नज़दीक है. एंड माई मदर वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस. उसकी मम्मी कहाँ काम करती है? पोस्ट ऑफिस में, जो उनका नेबरहुड है. नेबरहुड मीन्स नियर हिज हाउस. ओके, नाउ व्हाट डज गोपाल सेज? माई फादर इज ए टेलर. ही हैज़ ए शॉप इन द मार्केट बिहाइंड द स्कूल. अब गोपाल क्या बोल रहा है कि मेरे फादर जो है वो टेलर है और उनकी शॉप कहाँ पर है? मार्केट में है, जो हमारे स्कूल के पीछे है. ओके, दैट मीन्स अमजद ही सेज गोपाल एंड आई आर नेबर्स. अमजद क्या बोल रहा है? गोपाल और मैं जो है हम लोग एक दूसरे के नेबर्स है. दैट मीन्स उन लोग का घर आसपास है. मानसी, देयर इज अ चर्च नियर अवर स्कूल. आई गो देयर एवरी संडे. मानसी क्या कह रही है कि हमारे स्कूल के पास एक चर्च है जहाँ मैं एवरी संडे प्रे के लिए जाती हूँ. देर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड ऑफ दिस स्टूडेंट्स. दैट मीन्स ये स्टूडेंट्स के नेबरहुड में, उनके घर के आसपास बहुत सी प्लेसेस है जिसे हम स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, है ना. तो ये क्या हो गया? हमारे घर के आसपास है, इसीलिए क्या चीज़, ये सब चीज़ क्या हो गई? हमारी नेबरहुड. दिस इज आवर नेबरहुड. ओके, let us now hear Diya speak about her neighborhood garden avenue. Now where does Diya stays in Garden Avenue and she talks about the neighborhood. That means उसके घर के आसपास जो गार्डन एवेन्यू है, उसके घर के आसपास जो उसकी चीज़ें हैं, जैसे उसको स्कूल है, मार्केट है, केमिस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, हॉस्पिटल है, उसके बारे में वो बता रही है. ओके, सो लेट अस सी द डिटेल. School. First is school. My school is near my house. I learn many things at school. I also play games there. I have many friends in school. अब ये स्कूल जो है वो दिया के घर के पास है. That is Diya's neighborhood. Okay, so it is near her house. वो and she learns many things in school. Even you also learn many things in school. Yes, students. So when you go to school, you doesn't go only to study, write and learn. You play games there. You have many friends in school. You take parts in activity like sports, annual function and everything. Okay, now next, market. Now here you can see that there is a market in my neighborhood. There are many shops in the market. People buy fruits, vegetables and groceries here. There is a bakery in the market. We buy cakes, biscuits and bread at the bakery. There is also a chemist in the market. People buy medicine at the chemist shop. Now what does she say? What is her next neighborhood? Market. Okay, so here in her neighborhood the market is there. In that market there are many shops are there. People goes to the market to buy fruits, vegetables and groceries, and there is a bakery also in the market where they goes to buy cakes, biscuits, bread and many things. Okay, and there is also a chemist where people goes to buy medicine at the केमिस्ट शॉप. सो यू ऑल नो स्टूडेंट्स, आपके घर के आसपास जो मार्केट होती है वहाँ पे आप जब जाते हो तो आपको बहुत सारी शॉप्स दिखती है. जैसे फ्रूट्स की शॉप होती है, वेजिटेबल्स की होती है, देन किराना स्टोर जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोसरीज एंड ऑल. वहाँ बेकरी होती है वेर वी टेक ब्रेड्स एंड ऑल, बिस्किट्स एंड मिल्क एंड एनी वन केमिस्ट ऑल्सो. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल.
There is a big hospital in my neighborhood. Several doctors and nurses work in this hospital. They look after the health of the people and take care of the patients. The hospital also has ambulance to bring patients to the hospital. Once my mother took me to the hospital when I had got my arm broken. Now what is the next place in here? Diya's house, hospital. Okay, so hospital is a neighborhood to Diya's house. There are, what she says, there are many doctors and nurses works there. Yes, you all know that there are, when we go to hospital we can see many nurses are there, many doctors are there working and taking care of the patients. Okay, and the hospital also have ambulance. You must have seen, see here, you can see the ambulance here. Every big hospital have an ambulance to take and drive the patients. Okay, so it is very necessary when an emergency is there, we can call the ambulance to take the patient to the hospital. Once Diya went to hospital with her mother when she had broken her arm. ओके स्टूडेंट्स, you might have saw, आप लोग कभी देखे होगे, आप लोग गए होगे हॉस्पिटल में आपके पेरेंट्स के साथ में, तो है ना, तो वहाँ देखे होंगे कितने सारे बेड्स होते हैं, नर्सेज जो पेशेंट्स के मेडिसिन देती है, उनकी केयर करती है, डॉक्टर्स राउंड पे चेकअप के लिए आते हैं, राइट. सो दिस इज द नेबरहुड ऑफ दिया. द अनदर इज, the next one is post office. You can see here students, people are standing in a queue with near the window to send their letters, parcels in the post office. Nowadays also post office, when we go, you can visit the post office with your parents to see what the people used to send the parcel there and send the letters and everything. Okay, so there is a post office in our neighborhood. Mother and I go there to buy envelopes, stamps and postcards. Sometimes we also go there to send parcel to my grandparents. आप अगर इन केस आपको आपके पेरेंट्स के साथ आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ आप देखना, नोटिस करना कि वहाँ पे कितने लोग आते हैं जो वहाँ पे एनवलप खरीदते हैं, स्टैम्प्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं, जो अपने रिलेटिव्स को लोग सेंड करते हैं, वहाँ से लेटर्स सेंड करते हैं. नाउअडेज वी हैव मोबाइल्स एंड एवरीथिंग टू सेंड इट थ्रू द मोबाइल, बट देन ऑल्सो मैनी पीपल यूज पोस्ट ऑफिस which we have to visit and see. And apart from letters and all, we can sell parcels also. We can send parcels to their relatives and who are living far away from your place. The next place is library. My favorite place is the library close to my house. It has many books. People go there to read books and newspaper. We also borrow books from the library. The librarian helps me choose interesting books to read. और दूसरी प्लेस कौन सी है? दिया के घर के पास में लाइब्रेरी. ठीक है, वहाँ पे लाइब्रेरी क्या होती है बच्चे, जहाँ ढेर सारी आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक तरीके की आपको वहाँ बुक्स मिलेंगी. कॉमिक्स है, जनरल नॉलेज की बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है. तो वहाँ वी कैन गो देयर एंड रीड द बुक्स. हम लोग वहाँ जाके बुक्स भी रीड कर सकते हैं. मैनी आर्टिकल्स रहते हैं, न्यूज़पेपर रहते हैं. ठीक है, इवन हम लोग वहाँ पर जाके बुक्स जो है वो घर पे लेके आके पढ़ने के लिए लेके आ सकते हैं. वहाँ पे एक लाइब्रेरियन होती है जो हमें हेल्प करती है कि हमें कौन सी टाइप की बुक्स चाहिए. हु टेक्स द केयर ऑफ लाइब्रेरी. अनदर वन इज पार्क. माई नेबरहुड हैज़ अ बिग एंड क्लीन पार्क. पीपल कम टू द पार्क टू वॉक एंड एक्सरसाइज. माई फ्रेंड्स एंड आई गो देयर टू प्ले. द गार्डनर लुक्स आफ्टर द park. We do not pluck flowers or leaves in the park. We do not play or walk in the flower bed. दूसरी चीज़ क्या है दिया के नेबरहुड में? पार्क, दैट इज गार्डन. ठीक है, शी हैज़ अ बिग एंड क्लीन पार्क नियर हर नेबरहुड. वहाँ पे लोग आते हैं वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग में. ठीक है, व्हाट डज शी सेज? माय फ्रेंड्स एंड आई गो टू पार्क टू प्ले. दिया अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है गार्डन में, पार्क में खेलने के लिए. एंड हु टेक्स केयर ऑफ द पार्क? द गार्डनर. ओके, वो वहाँ पार्क का ध्यान रखता है, वहाँ के फ्लावर्स का, वहाँ के हर चीज़ों का क्लीन रखने के लिए. एंड वी डू नॉट प्लग फ्लावर्स और लीव्स. और वहाँ पे पार्क में बेटा हम लोग जब भी जाएंगे वहाँ पे हमें आके फ्लावर्स और लीव्स को तोड़ना नहीं चाहिए, विच इज़ अ बैड मैनर, और वो हमारे पार्क के नुकसान भी पहुँचा सकती है. वी डू नॉट प्ले और वॉक इन द फ्लावर बेड. अनदर प्लेस इज प्लेस ऑफ वर्शिप. There is a temple, mosque, church and gurudwara in my neighborhood. People go to these places to pray. इसके अलावा वहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे मॉस्क मतलब मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो पंजाबी लोग के रहते हैं. ठीक है, वो लोग वहाँ जाके प्रे करते हैं. अदर थिंग इज रेस्टोरेंट.
ये तो आपको सबको पता होगा, जब आपका बर्थडे होता होगा या आपके फैमिली में सब आते होंगे तो आप लोग एंजॉय करने के लिए एक साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना। समटाइम्स वी एंजॉय ईटिंग आउटसाइड होम. वी हैव अ प्लीजेंट मील एट अवर नेबरहुड रेस्टोरेंट. द रेस्टोरेंट इज अ क्लीन एंड टाइडी. द फूड इज फ्रेश एंड टेस्टी. रेस्टोरेंट जो होता है, हम लोग कभी कभी ऐसे एंजॉय करने के लिए हम लोग घर का बाहर कभी कभी मुड़ता है ना कि मम्मा आज आप खाना मत पका, हम लोग आज डैडी को कहेंगे हम लोग रेस्टोरेंट जाके खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं. वहाँ का फूड जो होता है वो फ्रेश और टेस्टी होता है और वहाँ रेस्टोरेंट जो है वो क्लीन एंड टाइडी होता है. एंड द लास्ट वन इज police station. There is a police station in my neighborhood. We can call the police or go to them for help whenever we are in trouble. They keep us safe. ये तो बच्चों आपको सबको पता है कि पुलिस स्टेशन क्या होता है. वहाँ पे पुलिस स्टेशन में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चोरी या कोई कुछ भी होता है, झगड़े होते हैं, ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ जाकर वहाँ से पुलिस मैन की हेल्प ले सकते हैं, है ना. बिकॉज वाई द पुलिस स्टेशन भी आर देयर इन द टाउन एंड सिटीज टू कीप द पीपल लिविंग देयर सेफ. ओके. द कीपिंग द नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन. बच्चों ये आपने देखा कि यहाँ पे इतने सारे नेबरहुड्स है हमारे घर के आसपास, है ना, लेकिन उसे साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है. वी लव अवर नेबरहुड. वी ट्राई टू कीप इट क्लीन. वी डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड और ऑन द स्ट्रीट. वी डू नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड अवर हाउसेज. वॉट इज सिद्धिया सेज कि हमें हमारे नेबरहुड का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें उसे साफ रखना चाहिए. कचरा यहाँ वहाँ सड़क पर या फिर अपने ग्राउंड पर बिल्डिंग का नहीं फेंकना चाहिए और ना ही हमारे घर के आसपास हमें गंदा पानी जो बारिश का होता है या फिर जो भी होता है ड्रेनेज वाटर वो कलेक्ट नहीं होना चाहिए, देना चाहिए. ठीक है. टुडे इज द ट्री प्लांटिंग डे इन अवर कॉलोनी. द पीपल ऑफ द कॉलोनी आर प्लांटिंग सैपलिंग्स. सैपलिंग मीन्स झाड़, जो छोटे छोटे झाड़ होते हैं ना, झाड़ के पौधे, उसे सैपलिंग्स कहते हैं. इन एंड अराउंड दी पार्क आवर गार्डनर टोल्ड अस दैट वी कैन मेक द प्लेग्राउंड ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज. हमारे बिल्डिंग का या कंपाउंड का जो गार्डन है वो ग्रीन और साफ कैसे लगेगा, तब हम वहाँ पे छोटे छोटे झाड़ लगाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे और उसे क्लीन रखेंगे. All the children of the neighborhood promised to water the sapling every day. Soon the sapling will grow into tall trees. जब हम छोटे छोटे झाड़ लगाएंगे तो उसे पानी देना भी ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट वाटर द सैपलिंग्स विल डेड. ठीक है. तो उसे सारे बच्चों ने प्रॉमिस किया है कि वो डेली सैपलिंग्स पे पानी देंगे ताकि वो झाड़ सैपलिंग्स जो है वो छोटे से बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ये लेसन. ये लेसन बताने का, सिखाने का मतलब इसीलिए था कि हमारे आसपास के, ये आप लोग भी देखते हैं कि आपके घर के आसपास कितनी चीज़ें, आपके पड़ोसी जो है वो सिर्फ आपके नेबर्स वही नहीं होते हैं, उसके अलावा जो मार्केट होता है, शॉप्स होती है, केमिस्ट होती है और बहुत सी चीज़ें जैसे पुलिस स्टेशन है, लाइब्रेरी है, गार्डन है, वो सारे हमारे नेबरहुड होते हैं. ठीक है बच्चों. सो लेट अस गो डू अ वार्म अप. Our neighborhood, the places around our home makes our neighborhood. People who live around us are our neighbors. जो हमारे आसपास में पड़ोसी रहते हैं उसे हम नेबर्स कहते हैं और जो जगह या चीज़ें, जो शॉप्स जो होती है वो हमारे आसपास घर के होती है उसे हम नेबरहुड कहते हैं. प्लेसेस इन अवर नेबरहुड, कौन सी प्लेसेस हमारे नेबरहुड में हो सकती है? स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, पार्क, लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट. ओके स्टूडेंट्स.